Yesterday, keeping the West Asia conflict situation in mind, Honorable Prime Minister, being Ram Navami, despite Ram Navami, all the officers and others were called. Honorable Prime Minister held a meeting, and in that it was decided that there should not be a shortage and there should not be an increase in price due to the global situation in crude, in petrol, diesel, and in ATF. So, Honorable Prime Minister, despite it being Ram Navami, called a meeting of all concerned, and today we have announced a decision whereby we will be giving support to the oil marketing companies so that they can import the material and not really, even if it is imported at a higher cost, the common citizen will not have to face any increase in the price of petrol or diesel. Equally, even for ATF, which is so required for aviation, we are making sure that the prices will not go up and the oil marketing companies will be supported to bring these commodities to India. Equally, another decision which is being taken by the Honorable Prime Minister is to make sure those refineries which get the material from outside, refine them and send as exports these materials will now have to face a higher duty so that both of diesel and ATF, so that these materials are available for India, they will be made available for domestic market and ensure that we shall not be sending products at a time when we so need them without any shortage. And on the rumors of the lockdown. I am surprised that some leaders are saying things like there will be a lockdown and there will be shortages of LPG, shortages of diesel, and so on. These are absolutely baseless, and remarks such as these coming from leaders in political domain is really worrisome. Instead of keeping people together in confidence and giving them the assurance that the central government and state governments are working together and ensuring supply without any disruption for people, because these are essential goods. There are some leaders who are going about saying there will be lockdown and so on. These are absolutely baseless. There shall be no such lockdown like the time when we saw it all in COVID, but no lockdown. But when people are misleading, leaders such as some coming from different states who are misleading people, I condemn their statement and want to reassure people that there shall not be any lockdown. थैंक यू। आज सरकार ने जो है बहुत बड़ा फैसला लिया और एक्साइज ड्यूटी में 10 रुपए की कटौती करी है पेट्रोल और डीजल पे। किस तरह से ये लोगों को राहत देने जा रहा है इस चैलेंजिंग टाइम में? देखिए, पहले विषय, जब भी ऐसे दुनिया में संकट आता है और उसका प्रभाव भारत के ऊपर पड़ेगा, इससे पहले कोविड हो या अब हो, जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी तुरंत इसको रिस्पॉन्ड करते हैं जिससे जनता के ऊपर बोझ ना लगे और जनता के ऊपर ये कष्ट भी ना हो, किल्लत ना हो पेट्रोल और डीजल का और एलपीजी का। इस कारण अभी क्योंकि विदेश में मार्केट में दाम बढ़ रही है क्रूड का, उसके कारण पेट्रोल और डीजल का, एटीएफ का, माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये चाहा कि कंज्यूमर का प्राइस बढ़ना नहीं है। उसके कारण हम निर्णय लिए हैं कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को सपोर्ट दें और जिससे वो ज़्यादा दाम में खरीदने वाली चीज़ों को सरकार उनको मदद करेगी, मगर जनता के ऊपर रेट बढ़ाना नहीं होना चाहिए। दूसरा, बड़ा दाम विदेश में बढ़ रही है, उसके कारण ऑयल मार्केटिंग कंपनीज खरीदना रोकें, ये से हालत ना हो, वो फिर भी खरीदें, फिर भी ले आएँ और हमारे जनता को समय समय पर सही क्वांटिटी जितना भी मिलना चाहिए उतना मिलने का इंतज़ाम करें। इसीलिए आज इस निर्णय के कारण सप्लाई कमी नहीं होगा, सप्लाई में, अवेलेबिलिटी में कमी ना होगा, जनता को डीजल भी, पेट्रोल भी, क्रूड भी मिलेगा। और एटीएफ बहुत इम्पोर्टेंट है, भारत देश का एयरक्राफ्ट्स और हमारी कंपनियों का
एक एटीएफ मिलना आवश्यक है। उसके कारण भारत में बहुत सारे रिफाइनरीज हैं जो विदेश से माल खरीद करके इधर उसको रिफाइन करके विदेश को एक्सपोर्ट भी करते हैं, हमें भी देते हैं। मगर वो एक्सपोर्ट के ऊपर हमने अभी ज़्यादा रेट बढ़ाया, एक्साइज ड्यूटी बढ़ाया, जिससे वो एक्सपोर्ट ना करते हुए भारत में ही उनको सेल करेंगे, जिससे भारत में अवेलेबिलिटी का भरपूर अवेलेबिलिटी रहेंगे, लोगों को कमी महसूस नहीं होने दें। कल रामनवमी के दिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने इमरजेंसी में एक मीटिंग बुलाई और इस विषयों के ऊपर चर्चा गोष्ठी करके तुरंत निर्णय किए, और इसके जितने भी करना है काम वो सब कल रात को ही हमारे मंत्रालय भी और पेट्रोलियम मंत्रालय भी बैठकर काम करके आज इस निर्णय हमने घोषणा कर रहे हैं। दूसरा एक और विषय मैं इस संदर्भ में बोलना चाहती हूँ। डीजल में किल्लत होगा, पेट्रोल नहीं होगा, लॉकडाउन होने वाले हैं, ऐसे कुछ नेतागण बात कर रहे हैं। ये बेबुनियाद गैर जिम्मेदाराना बयान है। लॉकडाउन का कोई गुंजाइश नहीं है और भारत में सप्लाईज भी टिक रहे हैं, इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी सबसे बात करके कुछ रास्ते भी निकालते आ रहे हैं समय समय पर। और आज हर राज्यों के साथ उन मुख्यमंत्री जी के साथ बात कर रहे हैं। चुनाव में जिन स्टेट्स जा रहे हैं उनके तरफ से उनके ऑफिसर्स भी आएंगे। सबसे स्टेट्स लेवल पर कोऑर्डिनेशन सही रहे और अवेलेबिलिटी भी सही रहे, कोई किल्लत ना हो, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी आज शाम को भी बात करना है स्टेट्स के साथ। ये सब होते हुए लॉकडाउन होने वाले हैं ऐसे करके बेबुनियाद डरावने वाले बात करना बहुत गलत है। लोगों को ये अच्छा नहीं करते हैं। जनता के सेवा में हम सब एकजुट होना है। बयानबाजी, डरावने वाले बयान और बेबुनियाद भय फैलाने वाले बयान करना खंडनीय है।